Good morning to all. I am again present in front of you my YouTube channel Dr. RS Mathematics and Geography classes. We are discuss my the previous video how to find the nth derivative with the help of the Leibniz theorem. In this series, we again discuss some most important questions of Leibniz theorem to find out the nth derivatives. Before starting the video, we can say that if you new viewer my YouTube channel, so please like, share and subscribe my channels. My channel is devoted whose students not afforded the fees of coaching classes. If you study in class 9th, 10th, 11th, 12th, CBSE, UP and ICSE board and higher classes for the BTech, BSc, Polytechnic Diploma and MBA, then you are subscribed my channel and complete your syllabus without any fees. If you want to take live classes my YouTube channel, so please do the message by my WhatsApp number 9719163762. Then you take live classes for these courses. यदि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना मैथमेटिक्स सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9719163762 और इस पर व्हाट्सअप करके मैसेज करें क्लास. देन यू टेक द लाइव क्लासेज ऑफ माय यूट्यूब चैनल्स. सो आई एम अगेन रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. लेट स्टार्ट दिस क्वेश्चंस. क्वेश्चन इज दैट if y to the power 1 upon m plus y to the power minus 1 upon m to equal to 2x, then prove that of this. If you see in type of this, अगर आप इस टाइप का प्रूफ कहीं पर भी देखते हैं, ये लिखा हुआ है कि yn+2, so we can say that yn+2 it means differentiative of the function of y n+2 times. Okay, so you are find the value of y in term of x in the given questions. Questions are given of this y to the power 1 upon m, y to the power minus 1 upon m equal to of 2x. ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है. आंसर आपका ये है y n+2 of this and this. So you can find the value of this function बाई इन टर्म ऑफ एफ. आप इस फंक्शन से बाई की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स में फाइंड करेंगे. आफ्टर देन यू आर डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन एंड फाइंड द रिजल्ट ऑफ दिस गिवन क्वेश्चंस. सो नाउ लेट वाई टू द पावर 1 अपॉन एम इक्वल टू ऑफ जेड. आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू लेट कर लेंगे बाई टू द पावर 1 अपॉन एम इक्वल टू जेड. देन putting value of z, this is the minus, so 1 by z equal to of 2x. Now taking the LCM, then z square upon 1 in z equal to of 2x. The write the value of z square plus 1 2z of x. Taking out of this 2x in z plus of 1 equal to 0. This is the value of -1. You can see that z square minus 2xz plus 1, this is the quadratic equation in term of z. So you are find the value of z in term of x with the help of the श्रीधराचार्य फॉर्मूला. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो आप क्या देखेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम z की वैल्यू इन टर्म ऑफ x फाइंड करेंगे बाय द श्रीधराचार्य फॉर्मूला. वी कैन नॉट फाइंड द फैक्टराइजेशन मेथड बाय द वैल्यू ऑफ z. इसका फैक्टराइजेशन मेथड से z की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे बिकॉज 2x is the variables. Okay, we are not divided of 2x any term of the constants. So we are applying the श्रीधराचार्य फॉर्मूला. श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था आपका, आप जानते हैं ax square bx plus c equal to 0. Then a is the coefficient of this. You are write the place of z square in form of this n of z. तो a equal to 1 and b equal to -2x and c equal to of 1.
देन जेड इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ऑफ 2a. दिस इज द श्रीधराचार्य फॉर्मूला. ओके, कि जेड इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन दिस. तो आप जानते हैं हमने कंपेयर किया बेटा जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस 1 इक्वल टू 0. वी आर कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ जेड ए जेड स्क्वायर बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0. ओके, इन यू आर नोन अबाउट ऑफ दिस. आपने मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा होगा इन टर्म ऑफ एक्स. कोई दिक्कत नहीं, जेड इज ऑल्सो वेरिएबल इन प्लेस ऑफ एक्स. So az square bz and comparing ay equal to 1, b equal to minus 2x, c equal to 1. A is the coefficient of z square, b is the coefficient of z and c is the constant. If you any doubt of this question, please make a note. देन जेड इक्वल टू माइनस ऑफ बी. माइनस ऑफ बी इट मीन्स बी की वैल्यू कितना था आपका माइनस 2x. तो यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 ऑफ x प्लस माइनस वी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ऑफ 1 वैल्यू ऑफ दिस डिवाइड बाई 2 इंटू ऑफ 1. सो जेड इक्वल टू 2x प्लस माइनस 4 इज कॉमन दैट x स्क्वायर माइनस 1 इन रूट और डिवाइड बाई 2. देन जेड इक्वल टू टेकिंग आउट ऑफ द 2x प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन रूट डिवाइड बाई 2. कॉमन लेके 2 इज कैंसिल. देन जेड इक्वल टू x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑफ दिस. जेड इज द वैल्यू ऑफ द बाई टू द पावर 1 मान लेते. जेड की वैल्यू आपने जेड इक्वल टू क्या लेट किया था बाई टू द पावर 1 अपॉन m. सो यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड इन प्लेस ऑफ दिस. So z equal to y to the power 1 upon m. 1 upon m equal to x plus minus of x square minus 1 in root. Then find value of y x plus minus of x square minus 1 in value power of m. आप जानते हैं कि बाई टू दी पावर 1 अपॉन एम जैसे ही आपका इक्वल टू से उधर जाएगा तो ये अपॉन वाला वैल्यू है इनटू में चला जाता है. तो बाई की वैल्यू x प्लस माइनस ऑफ दिस. हियर वी कैन से फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई इन टू वैल्यू ऑफ बाई x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1. यहाँ पे प्लस माइनस दो साइन आते हैं तो आप कोई सी एक साइन लेंगे लेकिन आंसर दोनों से सेम आएगा. तो यू आर टेकन आउट ऑफ y इक्वल टू x plus x square minus 1 in value of this. You are got the value of y in term of gap. You are differentiating. अब आपका प्रूफ क्या था by n plus 2. Leibniz theorem only find the nth derivative but the result is required n plus 2 times derivative. So first we find the 2 times derivative of this function after then applying the Leibniz theorem. हमारा रिजल्ट जो रिक्वायर्ड है, रिजल्ट क्या कह रहा है बाई एन प्लस 2. इट मीन्स डिफरेंशिएटिंग ऑफ बाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स एन प्लस 2 टाइम्स. बट लेबनीज थ्योरम क्या करती है ओनली एन टाइम डिफरेंशिएशन करती है. सो वी आर फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ दिस वन 2 टाइम्स. पहले हम इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर देंगे. सो बाई 1 एम एक्स x square minus 1 in root power of m minus 1. Again differentiating of this 1 plus 1 by 2 x square minus 1 minus 1 by 2 and differentiating of this is the 2x. डेरिवेटिव सभी को आता होगा बेटा आपका पावर ऑफ आगे आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 m माइनस 1. बट अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 इसका ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में है तो पावर 1/2 लगा देंगे. 1/2 आगे 1 माइनस माइनस 1/2 एंड अंदर वाले का डिफरेंशिएशन ऑफ 2x कैंसिल आउट वैल्यू ऑफ दिस. सो y1 इक्वल टू m राइट द वैल्यू x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन रूट पावर ऑफ m एंड माइनस 1 पावर लेके आप नीचे ले आइए. x
plus x square minus 1 in value of this, and again 1 plus x upon x square minus 1 in of root. यहाँ पे देखिए आपका पावर क्या था, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 m माइनस 1, तो m पावर ऊपर माइनस 1 पावर करके उसको उसी टर्म को हमने नीचे ब्रेक कर दिया। एंड यहाँ पे क्या, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 पावर अपॉन में लाके प्लस 1/2 करके 1/2 पावर हटा के रूट भी लगा सकते हैं, रूट हटा के 1/2 पावर, और x इज दिस। सो y1 इक्वल टू m x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर ऑफ m डिवाइड बाई x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन रूट, एंड एलसीएम ऑफ दिस x स्क्वायर माइनस 1 इन रूट, देन x स्क्वायर माइनस 1 इन रूट प्लस ऑफ x. these value cancel out of each other, cross multiply of this x square minus 1 and y1 equal to m x square minus 1 whole power of m. You are check out value of this. This is the represent the value of y, x plus x square minus 1 in m. You are putting in place of this value of y. If we any doubt of this question, simple, we are differentiating, we are first find the value of y in term of x. After then we are differentiating of this function with respect to x. You got the value of x square minus 1 by 1 of this. This is the value represented of y. You are putting the value of y in place of this. Please make a note. So value of this x square minus 1 y1 equal to m of y, or this is the root value of root, sorry, in value of root. अब क्या करेंगे, आपका रूट हटाएंगे एक बार, ओनली यू आर फाइंड द सिंगल डेरिवेटिव y1, इट मीन्स फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑफ दिस फंक्शंस. फर्स्ट वी एलिमिनेट द रूट ऑफ दिस, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर ऑफ y स्क्वायर. अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन. तो आपका अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 एज ए डिफरेंशिएशन ऑफ दिस y1 एंड y2 प्लस y1 स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन 2x एंड m स्क्वायर 2y एंड y1. देखिए 2y1 कैंसिल आउट ऑफ द कंप्लीट इक्वेशंस, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए. एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0. This is got the differentiating of function in 2 times and applying the Leibniz theorem in this functions. आपने क्या देखा कि 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास ये फंक्शंस आया. अब आप इसमें लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज लेबनीज़ थ्योरम डेरिवेटिव एनी फंक्शन है n टाइम्स, बट रिक्वायर्ड आंसर इज n+2 टाइम्स डेरिवेटिव. तो फर्स्ट भी डिफरेंशिएटिव ऑफ दिस फंक्शन 2 टाइम्स, आफ्टर देन अप्लाइंग द लेबनीज़ थ्योरम. लेबनीज़ थ्योरम केवल n टाइम डिफरेंशिएशन निकालती है, बट क्या है क्वेश्चंस में क्या करा है, n+2 टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो आप क्या करेंगे, पहले से ही उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, आफ्टर देन यू आर अप्लाइंग द लेबनीज़ थ्योरम. प्लीज मेक अ नोट. नाउ अप्लाइंग द लेबनीज़ थ्योरम, प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था. इफ़ यू नॉट सी माई द प्रीवियस वीडियो, सो प्लीज आई एम रिक्वेस्ट you see my the previous video for the better understanding of this video. प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले आप देखिए, उसके बाद इसको आप करिए, ठीक है ना. चलिए देखिए क्या था हमारे पास, u एंड v nc 0 x स्क्वायर माइनस 1 y n प्लस 2 प्लस
फिर आपका सेम NC1 फर्स्ट वी अप्लाइंग द लेबनी थ्योरम इन दिस क्वेश्चन। पहले इस पार्ट में लगाएंगे तो एक u होगा एक v होगा। u वो फंक्शन होगा आफ्टर सम टाइम डिफरेंशिएशन शुड बी जीरो एंड v इज दैट फंक्शंस डिफरेंशिएशन वी गॉट द nth डेरिवेटिव। ओके, हम दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन u लेट करेंगे, u कौन सा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन कुछ समय बाद जीरो हो जाएगा, बट आपका सेकंड v वो फंक्शन होगा जिसका वी गॉट द nth डेरिवेटिव। हम nth डेरिवेटिव फाइंड कर पाएंगे। अगर जनरली मान लीजिए इसका आप nth डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो एक बार तो 2x आएगा, दो बार 2 आ जाएगा, तीसरी बार में 2 का 0 आ जाएगा, तो वी आर नॉट फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। हम इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर पाएंगे। सो यू लेट दिस फंक्शन इज u एंड y2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है y3, y3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा y4, y5 एंड n टाइम्स करेंगे तो yn। तो ये हमारा b को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। सो NC1 x स्क्वायर 2x एंड इसमें से एक कम होता है लेबनी थ्योरम, yn+1 आ जाएगा। फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा, सॉरी, फिर आपका NC2 आएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2, ये yn आ जाएगा। प्लस करके आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, NC3 आएगा। ध्यान रखिए आपका NC3, बट 2 का डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा ना, तो जीरो होगा, अदर टर्म विल बी जीरो। नेक्स्ट इसके जितने भी टर्म होंगे वो सब जीरो आएंगे। तो वी आर नॉट राइट द ऑल टर्म ऑफ हियर। हम ऑल टर्म यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे आगे वाले जो भी डेरिवेटिव टर्म आएगा u का वो जीरो में आएगा, तो जीरो में आएगा तो सब एलिमिनेट। सो हमने क्या किया कि इस वाले टर्म में लेबनी थ्योरम अप्लाई कर दी। सेम प्रोसीजर वी आर अप्लाइंग x/1 में, सेम प्रोसीजर इसमें अप्लाई कर दीजिए प्लस करके NC0 x बाई n+1 आएगा, फिर NC1 x का डिफरेंशिएशन 1 yn, अब फिर 1 का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा तो अदर टर्म विल भी जीरो होंगे। अब लास्ट रह जाता है m स्क्वायर yn इक्वल टू, अब ये तो सिंगल टर्म है y ओनली, m इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द कॉन्स्टेंट वैल्यू। सो ये आपका y का डिफरेंशिएशन n टाइम्स करेंगे तो yn ही आएगा। अब आप देखिए NC0 प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था, अब मैं अगेन लिखता हूँ। NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू n होती है, NC2 की n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाता है। दीज आर डिस्कशन इन प्रीवियस वीडियो बाय द बाइनोमियल थ्योरम्स। ये बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट है जिसे प्रीवियस वीडियो में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, तो आप इसको पहले प्रीवियस वीडियो को चेक करें उसके बाद इसको देखें। तो आपका वैल्यू पुट करिए, यहाँ आ जाएगा 1x² -1 बाई n+2 प्लस NC1 n आएगा, देन डू राइट 2nx बाई n+1, NC2 को n-1 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 बाई n प्लस वैल्यू ऑफ दिस x बाई n+1 एंड n बाई n माइनस m² yn इक्वल टू ऑफ 0। So yn+1 here two term of yn+1 this and this, तो this is the single, ये एक ही टर्म है n+2 वाला, तो x² -1 yn+2 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 2n+1 x n+1, इनका 2 से 2 कैंसिल, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n² yn माइनस का n/n प्लस n/n और माइनस m² yn इक्वल टू 0, ये एंड ये आर कैंसिल। सो x² -1 बाई n+2 2n+1 x n+1 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है आपका n² माइनस ऑफ m², देन yn इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर द nth derivative of given functions. Very simple. If you any problem in this Leibniz theorem, any doubt, you write my the comment box. If you any query and any question of you, you are write my comment box. We are sort out your problem and shortly. Please make a note. Next question we are discuss here. Now, if y equal to
y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एल्फा एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एल्फा एक्स e टू द पावर 1 माइनस एक्स टू द पावर एल्फा ओनली, सॉरी, and e to the power minus alpha x 1 minus x to the power minus alpha, then prove that 1 minus x by n plus 1 minus n plus alpha x by n minus n alpha by n minus 1 equal to 0. Important question for the exam purpose. This is the most important question for the exam purpose. You can see that in the board, y equal to e to the power minus alpha x 1 minus alpha to 1 minus x to the power minus alpha, then prove that value of this. Now start solution of these questions. So first we find the, here you can see that y n plus 1, it means derivative of this function n plus 1 times, but we are discussing previous video only लेबनी थ्योरम डिफरेंशिएटिव एनी फंक्शन n टाइम्स. लेबनी थ्योरम क्या करती है, केवल किसी भी फंक्शन को n टाइम डिफरेंशिएशन करती है, बट यहाँ क्या है हमारे पास n प्लस 1 टाइम्स डेरिवेटिव है. तो फर्स्ट वी डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन इन 1 टाइम्स, आफ्टर देन वी आर अप्लाइंग द लेबनी थ्योरम. पहले हम एक बार इसे डिफरेंशिएशन कर लें, फिर उसके बाद हम लेबनी थ्योरम इसमें अप्लाई कर देंगे. सो नाउ वैल्यू ऑफ दिस y equal to 1 minus x to the power minus alpha and e to the power minus alpha x. This is the first function and this is the second function. So now differentiating of this y1 minus of alpha 1 minus x to the power minus alpha and minus 1, and again differentiating of this is the minus 1 plus, sorry, or e to the power minus alpha x as it plus 1 minus x to the power minus alpha as a differentiation of this function e to the power minus alpha x minus of alpha. We are differentiating by parts formula of this. हमने इसको फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट टू फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंशिएट किया. फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट, एंड सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इज एज इट. सो y1 इक्वल टू माइनस माइनस दैट इज द प्लस. So value of this alpha 1 minus x minus alpha and 1 minus x of minus 1. We have break in this formula, in this value हमने इसको दो में ब्रेक कर दिया, माइनस एल्फा एंड माइनस 1, तो माइनस एल्फा 1 माइनस 1 एंड e to the power माइनस एल्फा x. फिर अगेन माइनस ऑफ दिस एल्फा और 1 माइनस एक्स टी टू माइनस एल्फा और e टू दी पावर माइनस एल्फा ऑफ x. इसमें आप देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस एल्फा x एंड 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस ऑफ एल्फा. ये दोनों में कॉमन आ गया हमारे पास ये वैल्यू एंड ये वैल्यू. तो ये एल्फा बचा, एल्फा अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स बचा, क्योंकि 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 इसको अपॉन में ले जाइए, और ये बचा हमारे पास माइनस ऑफ एल्फा और वैल्यू ऑफ दिस. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? एनी डाउट ऑफ दिस क्वेश्चंस? क्वेश्चन आर गिवन इन दिस. वी आर डिफरेंशिएटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय द प्रोडक्ट रूल. ठीक है ना? वी गॉट द वैल्यू ऑफ दिस. प्लीज मेक अ नोट. अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. ठीक है ना? डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन आप पहले ही इंटर में पढ़ के आए होंगे, तो आपको डिफरेंशिएशन तो आपको आना ही चाहिए. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ बिलोंग. देखिए e टू द पावर माइनस एल्फा एक्स 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस, दिस इज रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ y. ये y की वैल्यू है कि नहीं? क्वेश्चन में स्टार्टिंग में चेक करिए आप. तो y1 इक्वल टू y एंड एलसीएम ऑफ दिस एल्फा माइनस ये हो जाएगा हमारे पास एल्फा प्लस एल्फा एक्स
डिवाइड बाई 1 माइनस ऑफ एक्स, इससे ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स एंड y1 इक्वल टू अल्फा एक्स ऑफ y, taking out of this 1 minus x of y1 minus alpha x y equal to of 0. You are differentiating of this function in one times. After then we are applying the Leibniz theorem. अब इसमें Leibniz theorem अप्लाई करेंगे. Applying y Leibniz theorem. So NC0 1 minus x y n plus 1. ओके, NC0 n 1 minus x y n plus 1 ऑफ दिस. फिर आपका NC1 डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन -1 एंड yn. फिर माइनस, अब इसमें अप्लाई हो गया -1 का डेरिवेटिव, फिर 0 होगा तो अदर टर्म विल बी 0, तो माइनस अब इस टर्म में अप्लाई करेंगे. NC0 अल्फा एक्स दैट इज द yn प्लस NC1 अल्फा एक्स, ये अल्फा, और yn एक और कम कर दीजिए yn माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि अगले टर्म में अल्फा का डिफरेंशिएशन 0 होगा तो सारे टर्म वहाँ 0 हो जाएंगे. NC01 1 माइनस एक्स की पावर yn प्लस 1 माइनस 1 है, दिस इज द NC1 n yn माइनस, अंदर करिए आपका NC0 फिर 1 अल्फा एक्स yn और माइनस NC1 n अल्फा yn माइनस 1 इक्वल टू ऑफ 0. इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स yn प्लस 1 माइनस n प्लस अल्फा एक्स yn और माइनस n अल्फा yn माइनस 1 इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया आपका सिंपल सा. ओके, देखिए यही रिक्वायर्ड था आपका. तो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. इफ यू एनी डाउट ऑफ दिस क्वेश्चन प्लीज मेक अ नोट. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. इफ यू न्यू व्यूअर my YouTube channel, so please like, share and subscribe my channel and complete your syllabus. We are discussing some most important question of the next video. Thanks for watching the complete video.